Hello students. Today we are taking the first chapter of your book, The Advent of Chipko Movement. Advent means the beginning. In this chapter, we will learn about the incident and consequences that led to the Chipko movement, and also about a community who has dedicated itself to save trees. The incident is as follows. The Maharaja of Jodhpur sent his men along with Gildari Das Bandari to Kejri village in Jodhpur in the year 1737 to cut down Kejri trees. The Kejri trees are sacred and the people of the Kejrali village, that is the Bishnoi community, worship the trees. They think it as holy. Amrita Devi Bishnoi, a woman, protested against the cutting of Kejri trees in her village, but the king's man did not heed to it. She requested them, she protested them, but they did not hear her. And then, on finding no other solution, she stuck herself to the trees. The king's man very cruelly cut her down along with the trees. On seeing their mother sacrifice her life to protect the environment and to protect the trees, her three children, Archie, Ratni and Bagu, also did the same and also met the cruel end. The Bishnoi community also led their life in order to save the trees. On that single day, 363 Bishnois sacrificed their lives. For every fallen Kejri tree, a Bishnoi sacrificed his life. That was how the movement got its name Chipko. The disturbing news spread like fire and reached the Maharaja of Jodhpur, and he immediately stopped the massacre. Bishnoi is a sect that was founded by Guru Jambeshwar, popularly known as Jamboji. He formulated 29 principles for the protection of herbivores and trees. That is how the community got its name Bishnoi. Bis means 20 and Noi means 9. For centuries, the Bishnois have remained the traditional protectors of black bugs or chingara and Kejri trees. Kejri tree is a boon for dry deserts and remain green throughout the year. And chingaras or black bugs do not destroy crops or do not harm the human beings. And Bishnois have been protecting these species from a very long time. It is indeed amazing how Jamboji, without any formal education or scientific training, understood the importance of preserving the biodiversity. The chapter tells us the importance of trees, animals, plants, and our environment. People even sacrifice their lives to protect our environment. So we should care and protect it. We should value it. We should know that certain people laid down their lives for the environment. इस चैप्टर में हमें चिपको मूवमेंट के बारे में बताया गया है कि ये कैसे शुरू हुआ था और इसको शुरू करने वाला या करने वाली कौन थी। यहाँ पे सबसे पहले हमें एक इंसिडेंट बताया है। यहाँ पे जो चिपको मूवमेंट जिसकी वजह से स्टार्ट हुआ था, जो जोधपुर के महाराजा थे, उन्होंने अपने कुछ लोगों को केजराली विलेज भेजा था, केजराली गांव में भेजा था। वहाँ पे केजरी ट्रीज जो थे उसको कट करने के लिए। तो वहाँ पे जो समुदाय के लोग रहते थे उनको बिश्नोई बोलते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पेड़ों को बचाने के लिए और एनिमल्स वगैरह को बचाने के लिए दे रखी है। तो उन लोगों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। जो फर्स्ट लेडी थी जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था वो थी अमृता देवी बिश्नोई। वो बहुत यंग थी, फिर भी उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपनी ज़िंदगी दे दी एक पेड़ को बचाने के लिए। और उनको देखे उस एक दिन में
363 बिश्नोइस ने अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा दी थी और उस दिन बिना कुछ सोचे समझे महाराजा के लोगों ने उनको काट दिया था ट्रीज के साथ। और इसीलिए इसको चिपको मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि वो उन सब ने अपने आप को उन पेड़ों से चिपका लिया था और उन्होंने उन लोगों को, राजा के लोगों को बोला था कि आप पहले हमें काट दो, फिर आप लोग पेड़ों को काटना। तो उन राजा के लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे पेड़ों को भी काट दिया और इंसानों को भी काट दिया। उसके बाद राजा को बहुत दुख हुआ कि इतने अच्छे लोग हैं ये हमारे एनवायरनमेंट बचाने के लिए, इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी के बारे में भी नहीं सोचा। तो उस वजह से उस राजा ने वो उधर ही स्टॉप कर दिया कि नहीं, मैं नहीं काटूंगी, यहाँ से नहीं और कहीं से भी मैं पेड़ नहीं काटूंगा। बिश्नोई समुदाय के बारे में हमें बताया गया है कि ये एक गुरु जम्बेश्वर जी ने स्टार्ट किया था, जिनको जम्बोजी के नाम से भी जाना जाता है। वो जब 34 साल के थे तब उन्होंने बिश्नोई ग्रुप को स्टार्ट किया था और बिश्नोई ग्रुप ने आज तक, बहुत सालों से आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी पेड़ों को बचाने में और चिंगारा जो जानवर होता है उसको बचाने में लगा रखी है। अब मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है द ईयर ऑफ द चिपको इंसिडेंट, दैट इज 1737। चिपको इंसिडेंट कब हुआ था? 1737 में। आप ये बहुत इजीली याद रख सकते हैं। दूसरा जो की पॉइंट है वो है द मेन नेम्स इंक्लूडेड इन द मूवमेंट। इस मूवमेंट में जो मुख्य नाम है, जैसे कि अमृता देवी बिश्नोई, उनकी 3 बेटियों का नाम आशी, रत्नी और बग्गू, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी थी, और द महाराजा ऑफ जोधपुर, जिसके कहने पे महाराजा, जोधपुर के महाराजा जिसके कहने पे ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था, और गिरधारी दास भंडारी, जिन्होंने उन लोगों को बिना सोचे समझे काट दिया था। The third point is 2 numbers that you should always remember। 2 numbers है यहाँ पे, हमें 2 नंबर दे रखे हैं, वो हमें याद रखना है। एक है 363। 363 वो उन लोगों के नंबर है जो उस दिन मर गए थे। 363 is the number of Bishnois who sacrificed their life on that day, and 29 which indicates how they get the name Bishnoi। बिश्नोई को अब उनका नाम बिश्नोई कैसे मिलता है? 2 और 9 से। 29 बिश्नोई, दैट इज 29। देन द 4th की पॉइंट इज अबाउट द बिश्नोई कम्युनिटी। सबसे पहले इस बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें याद रखना है उनका फाउंडर का नाम गुरु जम्बेश्वर और जम्बोजी, जिन्होंने जब वो 34 साल के थे तब बिश्नोई कम्युनिटी को स्टार्ट किया था। और दो चीज़ें जिनकी वो रखवाली करते हैं, जिनकी तरफ वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो 2 चीज़ें हैं। एक है केजरी ट्रीज और एक है ब्लैक बग्स और चिंगारा। केजरी ट्रीज की वो पूजा करते हैं, वो वर्शिप करते हैं, उसको पवित्र मानते हैं, और ब्लैक बग्स या फिर चिंगारा को भी वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं। I hope you have understood the chapter very nicely. Read the lesson nicely and have a good day.